गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 1। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, that is basic geometry concept. Introduction. Geometry is a branch of mathematics which deals with the study of shape, size and relative positions of figures. ज्योमेट्री जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग शेप के बारे में स्टडी करते हैं, साइज के बारे में स्टडी करते हैं और किसी भी फिगर में किसी भी प्लेस के पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं और रिलेटिव पोजीशंस के बारे में जानते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड ज्योमेट्री इन सेवरल वेज विच इंक्लूड्स सर्वेइंग लैंड एरियाज, measuring storage containers, constructing palaces, temples, etc. Eventually, it was realized that geometry is not restricted to the study of plane surfaces, but it is reflected in any form of art, measurement, architecture, etc. The word geometry is derived from two Greek words, geo meaning earth and metron meaning measurement. Geometry टू वर्ड से बना है। पहला वर्ड है जियो, जियो मीन्स होता है अर्थ, एंड सेकंड वर्ड है मेट्रोन, मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। देयरफॉर ज्योमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ। Geometry has come a long way from the ancient time of its first systematic study by Euclid to the recent times. In this chapter, we will learn about the fundamental building blocks of geometry, that is, points, lines, and planes. Besides this, we will study basic concepts of other geometrical entities such as line segments, rays, curves, polygons, angles, triangles, quadrilaterals, circles, parts of a circle, etc. So, first basic unit of geometry is point. What is point? A point is a mark of position. It determines a location. A small dot which is invisibly thin represents a point. Points are denoted by capital letters like A, P, etc. तो point क्या है स्टूडेंट्स? Point is an exact location. It has no length, no breadth and no thickness, and it is denoted by capital letter, single capital letter A, B, C, P, etc. Some practical examples of point are as follows. See, this is a pencil tip, pencil with a sharp end. This is an example of point. This is the tip of compass. It is also an example of point. Pointed end of a pin. This is point. Tip of a cone. This is practical example, daily life example of points. So we can say that point has no length, breadth or thickness, that is, it has no dimensions. Means point is dimensionless. You can say that point is dimensionless. You can also say that point is imaginary. Point जो है काल्पनिक है, imaginary है, because we can't put actual point.
क्योंकि एक्चुअल पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो है नो लेंथ नो ब्रेड्थ नो थिकनेस। पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेड्थ नो थिकनेस। बट हम लोग का पेंसिल टिप कितना भी शार्प हो, जब हम पॉइंट लगाते हैं तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस हो जाता है। तो कह सकते हैं कि दिस इज अ मॉडल ऑफ पॉइंट नॉट एक्चुअल पॉइंट। जस्ट लाइक ग्लोब, वी इमेजिन ग्लोब एज अ मॉडल ऑफ अर्थ नॉट एक्चुअल अर्थ। सिमिलरली this is the model of point not actual point because we can't put actual point। हम लोग एक्चुअल पॉइंट पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कितना भी शार्प पेंसिल टिप होगा हम लोग का तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस हो ही जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो है इमेजिनरी डॉट है, इमेजिनरी एग्जैक्ट लोकेशन है। द शार्पर आवर पेंसिल टिप we will be nearer to a point but not actual point। Understood? So this is the characteristics of point. This is point is imaginary and point is dimensionless। Next, line। What is line? A line is a collection of points along an endless straight path। It has no beginning and no end। It is represented by 2 points on it as shown in the figure। This is the example of line। It has no end point। These both side arrow shows that line has no end point and it is represented by 2 capital letter। This line is read as line PQ or line QP। It has no end point means कि line cannot be measured। line को measure नहीं किया जा सकता है। The arrow shows the line is endless। If we denote a line by single letter, we use a small letter like L, M। This can be named as line L, line M। So line is also imaginary। हम लोग कह सकते हैं कि लाइन भी जो होता है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। We can't put actual line, we can't draw actual line on paper। क्योंकि दोनों तरफ देखिए जो एरो है ये शो कर रहा है कि इनकम्प्लीट है। ये दोनों तरफ एंडलेसली इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब लाइन कभी ख़त्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो जस्ट लाइक पॉइंट एंड जस्ट लाइक ग्लोब कह सकते हैं कि लाइन इज ऑल्सो इमेजिनरी। केवल हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये लाइन है क्योंकि ये एक्चुअल लाइन नहीं है। एक्चुअल लाइन हम पूरे अर्थ पर भी ड्रॉ कर देंगे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, इमेजरेबल है। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू अदर। लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन का पार्ट है। अ पार्ट ऑफ ए लाइन फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट मीन्स लाइन हैज 2 end point। See, this is the line segment AB। This is line segment AB or line segment BA। It means कि line segment is actual because line segment has 2 end points। It means कि line segment has fixed length। This means line segment can be measured। इसे मेजर किया जा सकता है। 2 end point होता है, इट मीन्स कि इट हैज डेफिनिट लेंथ। सो वी कैन ड्रॉ एक्चुअल लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ एंड लाइन सेगमेंट का नेम हम लोग 2 कैपिटल लेटर से देते हैं। इसको लाइन सेगमेंट AB भी बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट BA भी कह सकते हैं। लाइन सेगमेंट का सिंबल भी होता है
जैसे लाइन सेगमेंट, इसको पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए, दोनों सेम है। ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ए बी के ऊपर ए सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देते हैं, मीन्स डबल हेडेड एरो, तो इसका मतलब है ये लाइन ए बी है, लाइन ए बी। तो लाइन ए बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी आर डिफरेंट। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। सो लाइन हैज लेंथ बट नो विड्थ, लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ विच कैन बी measured. Next, intersecting lines. Intersecting. The lines, two lines L and M are said to be intersecting if they pass through a common point P. टू लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं अगर दोनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास करते हैं। जैसे देखिए लाइन M एंड लाइन L ए पॉइंट P से पास कर रहा है। इट मीन्स कि बोथ लाइन्स L एंड M हैज अ कॉमन पॉइंट P, thus line L and line M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्ट मीन्स जानते ही हैं, इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करने वाला, जो लाइन एक दूसरे से कट करता है, एक दूसरे से मिलता है किसी एक पॉइंट पर कम से कम, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स आर एडजेसेंट एजेज ऑफ अ वॉल। अब एडजेसेंट एज मतलब टू एडजेसेंट एज, देखिए ये एज है, एक एज है, ये दोनों एज एक पॉइंट पर मीट करता है, मीन्स कि दोनों एज का कम से कम एक पॉइंट कॉमन है। तो टू एडजेसेंट एजेस ऑफ अ वॉल आर एग्जाम्पल ऑफ intersecting lines. Addition symbol. Addition symbol is an example of intersecting line because this point is common. Diagonals of a square is example of intersecting lines. एक पॉइंट कॉमन है इसमें डायगोनल्स में। Thus intersecting lines have one point in common. Now, parallel lines. What are parallel lines? Two lines L and M are parallel if they have no common point. That is, these lines do not intersect or meet each other. Two lines L और M को पैरेलल लाइन कहते हैं अगर दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। देखिए लाइन L और लाइन M का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से कहीं पर मीट नहीं कर रहा है, मीन्स कि दीज लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स रिमेन्स सेम। टू पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा इक्वल होता है। अगर दोनों लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। जैसे इस तरीके का देखिए एक लाइन है, अब ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, अभी ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, अभी कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है देखिए अभी कम ज़्यादा है, हर जगह इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों लाइन कहीं ना कहीं जा कर के मीट कर जाएंगे और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। तो डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है दो लाइन्स के बीच में तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल्स है। अपोजिट साइड्स ऑफ वॉल ऑफ ए रूम पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। अपोजिट एजेज ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। अपोजिट एजेज ऑफ अ नोटबुक
पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है, रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है, टू बैंक्स ऑफ रिवर नदी का दोनों जो किनारा होता है वो सब पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, 3 or more points are said to be collinear if they lie on a line। 3 or more points को कोलिनियर कहते हैं स्टूडेंट्स अगर वे एक ही लाइन पर होते हैं। जैसे देखिए पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पर है, ये 3 पॉइंट्स ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इन सब पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स कि पॉइंट्स इन अ लाइन, मीन्स कि 2 और मोर पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो एक लाइन में हो सकते हैं। इफ 2 और मोर पॉइंट्स आर इन अ लाइन देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर कोलिनियर। यहाँ पर पी क्यू आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए पी और आर तो एक लाइन में है लेकिन क्यू अलग है, तो ये पी क्यू आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर हो गया, कोलिनियर का अपोजिट। अगर 2 और मोर पॉइंट्स एक लाइन में नहीं हैं तो उनको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और एक और है कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कनकरेंट if they pass through the same point। अगर 3 और मोर लाइंस सेम पॉइंट से पास करता है, जैसे वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ए लाइन पास कर रहा है, इस पॉइंट से ए लाइन पास कर रहा है, इस पॉइंट से ए लाइन पास कर रहा है, एल एम एन ये सब जो लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है ओ से, तो ये सब लाइन को लाइन एल एम एन ओ ये सब को हम कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। कनकरेंट लाइन मीन्स लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से जो लाइन पास करते हैं जितने भी लाइंस वो सब कनकरेंट लाइंस कहलाते हैं। एंड द पॉइंट थ्रू विच ऑल लाइंस पासेज आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ concurrence। This point O is called point of concurrence। Distance between two parallel lines। The distance between two parallel lines is the same everywhere। पहले बताया स्टूडेंट्स, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, अदरवाइज जो पैरेलल नहीं होंगे वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट रे। अ रे is the part of a line having one fixed end point and extending endlessly in the other direction। A ray denoted by OP is shown below। This is ray OP students। तो रे का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? It has one end point। This end point is also called starting point and can be extended in one direction endlessly। So this is ray OP। And ray OP, ray, this is the symbol for ray, one arrow, single headed arrow is called ray, symbol of ray। This is ray OP। Ray OP cannot be written as ray PO because O is the starting point, initial point, that is end point। ray has one end point, तो आप रे OP को रे PO नहीं लिख सकते हैं, रे OP अलग होगा रे PO से, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रेज आर सन रेज, इट हैज़ वन स्टार्टिंग पॉइंट and can be extended in one direction endlessly। Rays of light from an electric bulb, these are the examples of ray। Now properties of rays। Number 1, infinite number of rays can be drawn from a given point। एक पॉइंट से आप ढेर सारा रे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है स्टूडेंट्स ओ, यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं, जितना चाहें उतना रे ड्रॉ कर सकते हैं। रे हैज़ वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो ओ ए ओ बी आप ढेर सारा रे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड, one and only one ray can be drawn beginning at O and passing through a given point A।
लेकिन एक पॉइंट ओ से स्टार्ट करके केवल एक ही रे ड्रॉ कर सकते हैं अगर वो पॉइंट दूसरा पॉइंट ए से पास करना है उसको। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओ दिया हुआ है और एक और पॉइंट दिया हुआ है ए, तो उन दोनों पॉइंट से केवल और केवल एक ही रे पास कर सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट ओ है और दूसरा एक और पॉइंट ए दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट से केवल एक ही रे पास कर सकता है, दूसरा रे पास नहीं कर सकता है। और थर्ड, टू रेज OA and OB having the same initial point O and forming a line are known as opposite rays। अगर टू रेज का एक ही इनिशियल पॉइंट है, जैसे देखिए रे OA है और ये रे OB है, OA और OB टू रेज है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट O है और दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दोनों अपोजिट है, मीन्स कि अपोजिट रेज फॉर्म अ लाइन। अगर लाइन बनाता है एक टू रेज तो उसको हम अपोजिट रेज बोलते हैं, और अपोजिट रेज स्ट्रेट लाइन में होता है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे OA का जस्ट अपोजिट OB है, रे OB इज जस्ट अपोजिट ऑफ रे OB, तो OA और OB अपोजिट रे कहलाता है। Next, plane. A plane is defined as a smooth flat surface which extends indefinitely in all directions. Examples of parts of planes. Number 1, surface of a smooth wall. A plane का एग्जाम्पल है। Surface of a floor in a room. A plane का एग्जाम्पल है। Geometrically, a plane extends indefinitely in all the directions, therefore representing a plane on paper is not possible. A rectangle or a parallelogram represents a part of a plane. A plane is represented by taking any three non-collinear points on it. प्लेन को हम कोई भी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेन को एक्चुअल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेन ऑल डायरेक्शंस में एंडलेसली इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम ये प्लेन का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।